Sidhu, and we have a very, very special program today. It is about Sikhism. Who are the Sikhs? Our guests today are Mr. Ranjit Singh, Counsel from the Consulate General's Office in Chicago, Mr. Harinder Singh, who's a historian himself and very well versed. We have retired engineer who's done a lot for Sikhs and our community in the United States, and his name is Mr. Rajinder Singh Mago. And we have Mr. A.D. Sodi, who is with 777 Entertainments. He's a big businessman and very well versed in Sikhism. We are glad to have you all. And my co-anchor, or the main anchor, is Miss Avni Singh. I would like to ask Avni to go ahead and please start this with the Sikh prayer. Saryanu Sastrikal. Hello, everyone. I'm very pleased to be here, and it's a very special moment for me, being an ardent follower of Sikhism. Let me get started. Ek oankar satnam karta purakh nirbhau nirvair akal murat ajuni sepang गुर बरसाए जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी वी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you, Avni. Mr. Rajinder Singh Mago, please, can you explain what this prayer means? Thank you, sir. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. This meaning, the Mool Mantar, which Avni Singh ji just said, this is the starting of Guru Granth Sahib ji. And what it means, Ik Onkar means that there is only one God, only one supreme being for the whole universe, for all the people, for the whole humanity. He is, was, and shall always forever be true. That is what Satnam means. Karta Purakh means he's the creator being. He's the one who has created this whole universe. Nirbhav. Nirbhav means without fear. Bhai, he has no fear. Nirvair, he has no enemies. He is without any enmity against anyone. That means he's all full of love. Nirvair, Akal Murat, meaning that he's immortal. He will never die. Is unincarnated, meaning that he's out of the cycle of birth and death. And he's self-existent. He was created by himself. He's not dependent on anybody else. And when you say Gur Prasad, meaning that he can be attained, he can be understood, he can be realized, but we need his grace to be able to do that, his kirpa. And how do you and he passed away in 1539. And this is considered to be the fifth largest religion in this world. It's nearly about 30 million people worldwide. As you know, in India, there are 1.4 billion or so people, and a little less than 2% of population of India is Sikh, which makes it about 30 million. And then Guru means a teacher. Sikh means a student. It's the word from the Sanskrit word Shishya. So Punjabi translation of Shishya is Sikh. Sikh is a learner
a disciple, a student. And Guru means a teacher. As you know, Gu means darkness, Ru means light. Someone who eliminates the darkness and brings in light. Darkness of darkness of ignorance and brings in light of knowledge. That is what Guru is. And Guru Nanak, at the age of about 38, had an experience and began to say that there's only one God. And the true religion really consists of being ever mindful of God, meditating on God's name, and reflecting it in all activities of daily life. He condemned superstition, hollow ritual, idol worship, asceticism, and caste system, and his followers are known as Sikhs. Again, Sikh means a student and a learner. What are the essential religious practices and rituals followed by the Sikhs? The Sikh gurus did not encourage hollow rituals. So there are no particular rituals where, you do something with the fire, water, or air or wind. It's just remembering God's name all the time. Naam japna, kirt karni. Kirt karni means work, earn your living honestly. Vand ke chakna, share your good fortunes with the needy. And then seva, seva, serve the humanity without any discrimination. This is the essential tenets of Sikhism, all these four. And otherwise, the general life is that being useful to this world, helping out others, and be there, truth, always be truthful, and stand up for justice. Stand up for justice for anybody, protect the unprotected. And of course, general way of life is going to Gurdwara in a Sangat. So being in a Sangat is also important, but remembering God all the time, Naam Japna, and then being together and stand up for truth and justice, that is the essence of Sikhism. Mr. Harinder Singh, would you like to add something to this? जी, मागो साहब ने बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया, इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने। कीर्त करना, नाम जपना, बन सकना, नाम जपना उस परमात्मा का जो एक गॉड है हर समय, और अपना कीर्त करनी, उसमें मेहनत करके जो भी आपने कमाना उसको कमाओ और उसको दूसरों में बांटो, दूसरों के साथ मिल बांट के खाओ। जो नीडी हैं, जो जिनको जरूरत है, तो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं इसको। तो ये बेसिक्स हैं सिखिज्म के, जो सभी सिख इसमें बिलीव करते हैं और उसमें विश्वास करते हैं और उसको करते हैं। तो नाइसली ही सेड नाइसली, सो मैं भी इससे एग्री हूँ। तो इस सिखिज्म इज अ यूनिक कंसेप्ट इन द वर्ल्ड। सो इसमें ऐसा है कि आप जो आज हम लंगर देखते हैं वो उसी समय से शुरू हुआ है। गुरु नानक पातशाह जी ने उसमें उन्होंने शुरू किया था, तो उसी की ये तहत आज ये लंगर जो हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, खालसा एड है उसमें, जहां भी जरूरत होती है वर्ल्ड में तो वहां जाते हैं, वो मेडिसिन वगैरह, फूड वगैरह जो नीडी हैं उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये कंसेप्ट है जी। Next question forward to Ranjit ji. Ranjit ji, what is the significance of Guru Granth Sahib, if you could tell our audiences, and what role does it play in the life of Sikhs? Thank you, Avni. I feel very humbled amongst all of you. Actually, I am not a scholar, but whatever I feel about it, I will share my feelings with you. When we are going to talk about Sikhism, we need to start with its guide, that is the holy book, Guru Granth Sahib. It is not only the holy book of Sikhs, it serves as a guide to the whole of humanity.
In one of our prayers, there is a question, which religion is the best? That prayer is Sukhmani Sahib. It is like this in Punjabi. Sarab dharam mein shreshth dharam, har ko naam jap nirmal karam. Means when someone asks Guruji कि वर्ल्ड इच कौन सा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो गुरु साहब ने ये आंसर नहीं किया कि जो सिख धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ कर्म है, जो आपके कर्म हैं वो आपको वो श्रेष्ठ धर्म है। अच्छे काम करना, अच्छे कर्म करना ही द आंसर इज गुड डीड्स एंड मेडिटेटिंग ऑन दोस मीन्स अपने जीवन में उनको धारण करना और उसके बारे में कोशिश करना, यही श्रेष्ठ धर्म है। एक और गुरबाणी की लाइन है, मार्ग चलत हरे हर गाइया। मीन्स इसका ये भाव है कि जो भी ईश्वरीय गुण हैं, दैविक गुण हैं, वो हमारे जीवन में नजर आने चाहिए। जैसे हमारा जीवन के जितने भी पहलू हैं उसमें वो दृश्यमान होने चाहिए। जैसे हैं दैविक गुणों की हम बात करते हैं, कंटेंटमेंट है, कंपैशन है, दया है, काइंडनेस, फॉरगिवनेस है, किसी को माफ कर देने की। ये सारे गुण अगर हमारे जीवन में नजर आ रहे हैं तो हम एक श्रेष्ठ धर्म को मानने वाले हैं। ये उसका नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चाहे हिंदू धर्म को मानने वाला हो सकता है, इस्लाम को मानने वाला हो सकता है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो सकता है, लेकिन उसमें गुरु ग्रंथ साहब में जो हमारे ये गुण हैं, जो ईश्वरीय गुण हैं, निर्वैर होना, निर्भय होना, इनका जीवन में आना बहुत ही जरूरी है। यही जो ईश्वरीय गुण हैं, हमें चाहे हम एक ऑफिसर हैं, एक टीचर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे हम एक पेरेंट हैं या हम पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो ये हमारे जब जीवन में आएंगे तो हमारा जीवन हर नजरिए से अच्छा बनेगा। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और गुरु ग्रंथ साहब की एक और खासियत है कि हालांकि जो अगर आप देखेंगे कि सिख धर्म की जो परिभाषा है उसमें लिखा है कि सिख एक अकाल पुरख में विश्वास करता है और अन्य किसी धर्म को नहीं मानता। हालांकि हम सभी धर्मों को मानते हुए किसी धर्म को नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि जो उसमें रिचुअल्स या हिपोक्रेसी हैं उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब की एक जो सेकुलर फीचर है उसमें आप देखिए कि ये इसमें जो ईश्वर को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में भगवान, भागवत, बिशन, ब्रह्म, गोविंद, गोपाल, गिरधर, गोसाई, केशव, मधुसूदन, नारायण, राम, प्रभु, रघुराय, ये इतने सारे नाम आते हैं ईश्वर को संबोधित करने के लिए। यहीं तक सीमित नहीं है, फिर इसके आगे जो हमारे जो इस्लाम से धर्म से संबंधित लोग हैं, उनके सभी नाम भी इसमें वो आते हैं, जैसे अल्लाह, कबीर, करीम, रहीम, राज़क, खालक। सो भगवान को इन सभी नामों से संबोधित किया गया है। और गुरु ग्रंथ साहब में it has views and poetries not of just 6 gurus but 15 भक्तों के भी इसमें वो वाणी शामिल है, जिसमें जैसे भक्त नामदेव जी हैं, वो महाराष्ट्र से हैं, और भगत त्रिलोचन जी हैं जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं, भगत जयदेव हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, रविदास हैं जो एक उनको सो कॉल्ड लो कास्ट से कहा जाता था, चमार जाति से कहा जाता था। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जाति धर्म इसका कोई वो कंसिडरेशन नहीं है। इट ओनली टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ merit in their views and those who educate about the divinity and educate us about the hypocrisy and superstitions.
सो हम सभी में बहुत कुछ कॉमन है. वी शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स. सतनाम सतनाम जी जप ले वाहे. In continuation to this, I know this is an ocean, this is as vast as it can be, and I know it's very difficult to phrase it in such little words. There is so much, and so much knowledge that all of you carry with you. But Harinder ji, a question mera, since we spoke about the Guru Granth Sahib, and then we also spoke about how it also refers to other religions. Can you shed a little light on when this religion came in? Did it come in later? And again, from a Guru Granth Sahib, I know that from all the gurus who contributed to that, if you just shed a little light for our audiences. जी अवनी जी, बिल्कुल. इसमें क्या है कि जो गुरु ग्रंथ साहब है, इट्स अ सेक्युलर होली बुक ऑन द अर्थ. इसमें जैसे पाजी ने जैसे बताया पहले, इसमें 15 भक्तों की है वाणी है, और इसमें शेख फरीद जी की भी वाणी है. तो हमने गुरु साहब ने इसको कंपाइल करते समय ये नहीं देखा कि इसमें सिर्फ सिख की ही वाणी है या गुरु साहब की है. जहां से जो अच्छी चीज मिली उन्होंने इसको कंपाइल किया. और आपको एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा अवनी जी, जो हरमंदिर साहब की जब उन्होंने इसको नींव रखी तो उसके 4 दरवाजे इसीलिए रखे सिखिज्म में कि सभी धर्मों के लोग वहां आ सकते हैं. कोई ऐसा नहीं कि खाली सिखों की अपनी ये निजी मलकियत है. कोई भी इससे गाइडेंस ले सकता है अपने जीवन में, और इसको अपने जीवन के अंदर इसको अच्छे इसमें अपना बेनिफिट ले सकता है. कोई भी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई भी 4 दरवाजे इसीलिए हरमंदिर साहब के उन्होंने रखे. और ये जो सिखिज्म है 15th सेंचुरी में ये गुरु नानक देव जी से इसकी शुरुआत होती है. जब पहली बार जो उनका टीचर था उनको पढ़ाने आया तो उन्होंने वो स्लेट होती थी उस समय, उस पे उन्होंने एक ओंकार उकारा था उस समय. सो एक ओंकार बाजी ने जैसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि तभी से सिखिज्म की शुरुआत मैं मानता हूँ. मेरे हिसाब से उस समय से ही एक क्रांति है. जैसे हम इसमें जो समाज में जो चल रहा था पहले उसको अपोज किया, और ये रेवोल्यूशन है जो सोशल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं इसको. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन हुआ. सो सेम सिमिलर टू दैट थिंग्स लाइक गुरु नानक साहब ने ये एकमकार उस समय उकारा था वहां पे कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो एक ही है, और रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें रूट अलग अलग हैं, पर वो है एक ही. उस समय से सिखिज्म की शुरुआत है. सिख्स जो हैं वो 10 गुरु साहिबान और गुरु ग्रंथ साहब में अपना विश्वास रखते हैं. जो भी उन्होंने कोई गाइडेंस लेनी होती है गुरु ग्रंथ साहब से लेते हैं, जो गुरु साहब से लेते हैं. तो गुरु साहब ने इसमें बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है सिखों के लिए और सभी धर्मों के लिए, मैं मानता हूँ. पहले सिखों के लिए क्यों, कोई भी इससे बेनिफिट ले सकता है अपने लाइफ के अंदर. इसको अप्लाई करके कोई भी वो स्पिरिचुअल जो है उसको अचीव कर सकता है. सारे जगदा लखारी. लाइटर नोट, मैं अपना एक फेवरेट क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ सकूं. आई नो एज अ चाइल्ड एंड आई फॉलो सिखिज्म टू वेरी प्राउडली. And मुझे ये याद है कि Sundays were always meant, and even today with my kids, we would go to the Gurdwara, हम कीर्तन सभा में जाएंगे, हम बाणी सुनेंगे और उसके बाद लंगर छकेंगे. तो that used to be a very exciting moment, all our childhood, where we would go, and actually वहीं से I learned the concept of seva, where I was told कि अगर आप जा रहे हैं साफ मन से, also contribute in some way, and that so a little more if you would talk about langar and seva, if you would want to take that question. जी अवनी जी, मैं इसमें थोड़ा करना चाहूंगा. मेरे हिसाब से जो सेवा है, जब हम जाते हैं ना, संगत में जाते हैं, गुरु साहब ने ताकीद की है हमें, जब आप संगत में जाते हो, कीर्तन सुनते हो, तो आप देखना कभी जाके आपकी जो मेंटल स्टेट है ना वो चेंज हो जाती है. आप स्पिरिचुअल हो जाते हो जाके वहां पे, वो संगत के अंदर बैठ के, और वो कीर्तन सुनते हैं जब हम, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है. और समटाइम जब भी हम जाते हैं हरमंदिर साहब, वहां पे कीर्तन ऑल द टाइम वहां पे कीर्तन होता है, और जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और आपका मन इतना निर्मल, इतना शांत हो जाता है. तो ये एक पावर है, ये संगत की पावर है, ये कीर्तन की पावर है. और लंगर में इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, गुरु साहब ने ये शुरू किया था जब कोई भी आए मेरे दरबार में, कोई भी आए तो सभी बराबर हैं. उसके लिए उन्होंने ये एक शुरू की थी लंगर प्रथा, कि सब
को पहले बैठ के एक पंगत के अंदर एक लाइन में सभी को जमीन पे बैठ के वो लंगर छकना होता था। उससे क्या होता था, हमारा अहंकार है, जो हमारी हौमें है, वो निकल जाती थी कि हम हमारे अंदर, जैसे अकबर बादशाह आया गुरु साहब से मिलने, तो सबसे पहले उसको भी, अकबर बादशाह को भी, जो मुगल किंग था, तो सबसे पहले उसको नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के लंगर छकना पड़ा। उसके बाद गुरु जी के दर्शन हुए। तो इसका कंसेप्ट यही है कि सबको अपना अहंकार छोड़ के, जो हमें है उसको त्याग के, तो उसके बाद ही हम लंगर छकते हैं। इसका कंसेप्ट यही है कि आप अपना हमें, अपनी वो इग्नो, जो है हमारा एरोगेंसी है, वो उसको छोड़ो। उसके बाद आप लंगर छको, आपका मन निर्मल हो जाएगा। उसके बाद गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो लंगर प्रथा का तो ऐसा इसीलिए कंसेप्ट शुरू किया था कि सभी बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। जप ले वाहेगुरु जी। रंजीत जी, लेट मी एड्रेस माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। काफी सारी बात की हमने, गुरुद्वारे की, लंगर की, गुरु ग्रंथ साहिब की। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, फॉर आवर ऑडियंसेस, tell us a little more about the significance of the Gurdwara and you know, how this happened, a little history and what it means to the Sikhs. देखिए, गुरुद्वारे को हम एक धर्म स्थान की तरह मानते हैं। मतलब आजकल नॉर्मली जो लोगों के मन में है कि गुरुद्वारा एक धर्म स्थान है, लेकिन धर्म स्थान के बियॉन्ड ये और भी बहुत कुछ है। तो सिख धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम है भाई कान सिंह नाभा। तो उनका कथन है कि ये आत्मिक खुराक का एक सोमा, मतलब इट इज सोर्स ऑफ डिवाइन नॉलेज। उसके अलावा ये भूखे के लिए भोजन का भी स्थान है, और जो निथावे के लिए थाम है, मीन्स शेल्टर फॉर द शेल्टरलेस। मीन्स ये जो और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए एक स्थान है। मतलब एक कंप्लीट सोशलाइजेशन का सेंटर इसको बनाने की कोशिश की गई थी। कि आजकल जैसे आप देखते हैं कि गुरुद्वारों में, बहुत सारे गुरुद्वारों में चैरिटेबल डिस्पेंसरीज चलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। हमने कोविड के दौरान देखा कि वेयर मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ लिमिटेशंस थी, तो उसको हमारे धर्म स्थानों ने, मतलब गुरुद्वारा, मंदिर वगैरह और दूसरे भी एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन गुरुद्वारों ने भी इसमें मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो गुरुद्वारा जो है, मीन्स ये एक नॉट ओनली फॉर स्पिरिचुअल नीड्स, बल्कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए वो बना है। तो it focuses on all needs of for all of us, means with बुजुर्गों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर रिलीजन के लिए। तो यही मैं कहना चाहूंगा इसमें। थैंक यू। And Harinder ji, would you like to add something? जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे पाजी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जब पुरानी बात है, एंशियंट टाइम में, जब सिखों के मुगल बादशाह वहां राज करते थे और सिखों को मुकाने पे तुले हुए थे, उनके सिर, जो भी सिर लाके देता था ना सिख का, तो उसको इनाम दिया जाता था। तो उस समय क्या हुआ था कि हरमंदिर साहब जो है, वो सभी सिख उसको अपना होली स्पिरिचुअल वो मानते थे कि वहां जाना ही जाना है। तो वहां पे बंद कर दिया था उन्होंने, पहरे लगा दिए थे। तो इवन दैट, इन दैट सिनेरियो, सिक्स अपने जान को तली पे रख के, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी तब भी उस समय आते रहे वहां गुरुद्वारा साहब में। तो मैं ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी सिग्निफिकेंस है जो गुरुद्वारा की, बहुत ज्यादा है सिख की लाइफ में, क्योंकि यहाँ से हमें स्पिरिचुअल मील मिलता है, वो हमें हमें वो गाइडेंस मिलती है लाइफ के अंदर। तो हम किसी भी समय, किसी भी मुसीबत में यहाँ से गाइडेंस लेके हमारे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। तो उस समय भी सिखों ने मतलब जाना नहीं छोड़ा गुरुद्वारा में। जब वहां पे हुक्मरान हुआ करते थे, पहरा लगता था मुगलों का, तो उस समय भी सिख आते थे वहां पे। बेशक उनको बाद में वो कत्ल कर दिया जाता था, शहीद कर दिया जाता था, पर वो वहां पे आने से रुके नहीं। तो गुरुद्वारा साहब की जो है सिख की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है।
वहां पे जाके हम अपनी सारा कुछ भूल के वो स्पिरिचुअल रंग में रंग जाते हैं। जब हम संगत में बैठते हैं तो संगत का मतलब होता है वहां पे कीर्तन होता है। संगत में जब हम बैठते हैं तो उसमें एक अलग तरह से पावर आ जाती है। वो लोगों के अंदर जाके हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तो संगत करने का मतलब ऐसा है, जब हम वैसे भी एक बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब हम वो संगत के अंदर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा मन भी उसी रंग में रंग जाता है। हम सभी कुछ पूरे दुनिया को भूल के, पूरे संसार को, अपनी पूरी सारी वो अपनी लाइफ के वो मुश्किलों को भूल के वहां पे आनंद से वो उसको श्रवण करते हैं, कीर्तन को। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सिख की लाइफ के अंदर। तो मैं इसमें एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि सियासत सियासत की लड़ाई थी, जो पुराने जमाने की लड़ाइयाँ थी वो सियासत की लड़ाइयाँ थी। पर आप यही बता रहे हो कि सियासत की लड़ाइयों में भी सिखों ने गुरुद्वारा जाना बंद नहीं किया। कुछ रह जाना ए जगते इसमें सिख कौन बने, कौन थे वो लोग जो सिख बने? कौन थे वो लोग जो सिख बने? वहाँ जो उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी उसमें कैस्ट सिस्टम था काफी। उसमें जैसे आप जानते ही हैं, मनुस्मृति के हिसाब से जैसे हमारी पॉपुलेशन बटी हुई थी चारों हिस्सों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो जो शुरू तो ऐसे हुआ कि जितने भी सिख गुरु थे वो क्षत्रिय उसमें से थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब गुरु नानक देव जी को वो रेवोल्यूशन हुई तो उन्होंने कहा ना को हिंदू ना मुसलमान। तो उन्होंने उसके बाद जब वो 9 साल के थे तो उनको जब उनके माता पिता, ये कहना ठीक रहेगा कि गुरु नानक देव जी के माता पिता हिंदू थे, और जब वो 9 साल के थे तो उनको जनेऊ पहनाने लगे उनके जो फैमिली के पंडित थे कि अब आपको बैप्टाइज कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। वो सिर्फ इसलिए मना किया उन्होंने कि उन्होंने पूछा अपने वो पंडित जी से कि ये आप मुझे जनेऊ पहना रहे हैं लेकिन मेरी बहन को नहीं पहना रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? और फिर कुछ लोगों को एक रेशम का जनेऊ है, किसी को किसी डिफरेंट किस्म का जनेऊ है। सो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि हमारे समाज में बहुत अनइक्वालिटी है, तो उसके लिए हम सब एक हैं। तो इससे जो जो शुरू में तो ऐसा ही हुआ ना, जो जो ऐसे थे जिनको डिस्क्रिमिनेशन समाज में होती थी उन्होंने ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद जो इनका था एक ओमकार का जो थॉट कि बस एक ही परमात्मा है, एक ही परम आत्मा है, एक ही हमारा क्रिएटर है, तो फर्क क्यों आपस में? इस तरह से कई लोग उनके साथ जुड़े। उसके बाद फिर वो दूसरे गुरु आए, 10, जैसे आपको पता ही है कि 10 गुरु हुए हैं हमारे, और 5वें गुरु ने ये गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। और इसी तरह से समय बदलता गया। और जब इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स भी थे इंडिया में आए, तो उनका भी मतलब ये था कि वो सबको अपनी तरह बनाना चाहते थे। तो हमारे सिख गुरुओं ने उसका विरोध किया। उसने कहा भी वी आर फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट everybody has their right to choose whatever they want to be। किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो गुरुओं ने, जैसे 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी हैं, उन्होंने अपना सर कटवा दिया सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि जिनके लिए कटवाया कि वो उसमें उसको मानते थे, लेकिन इसके लिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। सो उनके जो ऐसे उच्च विचार थे उनके लिए काफी लोग उनके साथ जुड़ गए। और शुरू में कई मुस्लिम कम्युनिटी के भी थे, और बेसिकली मेजॉरिटी तो हिंदू कम्युनिटी के ही थे। और शुरू में जो पिछले 3 हर समाज में ब्राह्मण ये वो सब भी आए उसमें, लेकिन शुरू में पहले वो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो ज्वाइन किए।
बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरां दे सोडी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ, ਮਸਜਿਦ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਚਰਚਿਸ, ਪ੍ਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਦ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਹੀਂ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਾਊਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਫ੍ਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਉਤਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 10-9 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50 ਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ $1 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਬਟ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੁੜ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਟ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੋਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I think those are some great achievements in contemporary times, just Sikhs for contribution and how they are taking this forward and how they can just, not just help themselves, but the entire community. So I think very well said, Sodhi ji, very well compiled. मेरे साहिब दे रंग न्यारे This is a very vast topic. This is an ocean, samundar है ये तो एक बूंद भी नहीं है जो हमने इस बारे में बात की है, and I understand all the time constraints and everything, this is just what we've touched on, and I'm hoping we'll have, a lot more to talk about in later days, but this is really vast and again a beautiful, beautiful topic that we've picked up today very proudly, and I'm sure the world will be, all our audiences across the world will be very happy to hear about what you guys have shared with us. Before we close, Ranjit ji, do you want to say something? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि एक हमारे सामने बड़ा सवाल होता है कि हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3 मिनट में वाइड अप करने की कोशिश करता हूँ कि वाई देर इज नीड टू गेट कनेक्टेड विद अवर फिलॉसफी एंड स्क्रिप्चर्स। तो गुरबाणी में एक लाइन है, पब्बर तू हरियावला कमला कंचन वन, कह दोखड़े सड़ियो काली होया देहरी नानक मैं तन पंग। ये ना, यहाँ गुरु नानक देव जी एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि एक सरोवर था, उसके चारों तरफ बहुत ही हरियाली थी, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तो एक यात्री था, वो वहां जाता था, उसको काफी आनंद आता था। तो कुछ दिन बाद वो गया तो उसने देखा कि वहां पे वो जो हरियाली है वो खत्म हो चुकी है, कालिक सी छा गई है चारों तरफ, और उसमें ना वो कमल के फूल हैं ना हरियाली है।
तो फिर जो यात्री था वो उससे वो क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स कै दोखड़े सड़ियो काली हुईया देहरी नानक मैं तन पांग, मीन्स ये तेरा हाल ऐसे कैसे हो गया। तो वो फिर जो सरोवर था, तालाब था, पॉन्ड था, वो आंसर करता है कि जांदा पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग। उसने कहा कि मेरा एक जो कनेक्शन था वो एक फ्रेश वाटर के साथ था, वो फ्रेश वाटर सप्लाई मुझे मिलती रहती थी। तो ये मेरा ये मेरी हरियाली और जो खिलावट थी, इतना मतलब वो वाइब्रेंट था एटमॉस्फेयर मेरे चारों तरफ, तो उसका ये रीजन था। तो अब मुझे ये जो फ्रेश वाटर सप्लाई है ये मुझे नहीं मिल रही, जांदा पानी ना रहा, मतलब एक फ्लोइंग वाटर था, वो अब नहीं, वो उससे मेरा कनेक्शन टूट गया है। तो कहने का भाव ये है कि जब हमें अपने स्क्रिप्चर्स की सप्लाई मिलती रहती है, उससे हमें डिवाइन नॉलेज और जो मतलब हमें डेली का ये माइंड का फ्रेशनेस होने का कीर्तन के थ्रू, कथा के थ्रू, या ये वैसे एक यूनिवर्सल मैसेज है सभी के लिए। जैसे अमेरिकन सोसाइटीज मतलब गनिंग रेट या जो यहाँ ड्रग एडिक्शन का बच्चों को काफी वो असर हो रहा है। तो हमें जरूरत है कि जो भी धर्म के लोग हैं यहाँ मतलब एक सिर्फ सिख धर्म के लिए मैसेज नहीं है कि हमें गुरु ग्रंथ साहब से नॉलेज लेनी है, गुरु ग्रंथ साहब के जुड़ना है। जितने भी धर्म हैं उन सब के लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है, वी शुड गेट कनेक्टेड टू अवर स्क्रिप्चर्स, ताकि हमारे जीवन में एक फ्रेश वाटर की सप्लाई चलती रहे और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं जिससे हमारे बच्चे और हमारे युवा लोग, our children and our youth are vulnerable to those, उससे हम बच सकें। तो ये फ्रेश वाटर की सप्लाई जो है अपना हम कोशिश करें कि हमारे अपने जीवन में और हमारे परिवारों के जीवन में और हमारे समाज में ये बनी रहे। सतनाम सतनाम जी जप ले वाहे। I would like to thank on behalf of Outland Media, Jeet Singh ji, Harinder ji, Rajinder ji, Sodi Saab, for all of you for taking out time. I think this was a very enlightening session, and you guys have like depth of knowledge within you about Sikhism, and we would definitely like to talk to you again and bring, more meaningful messages and, about Sikhism. And I'm sure the audiences have a lot of questions. We'll also get a lot of questions, I know, after this one. So stay tuned, everybody, and we'll have more of this coming. Thank you again, everybody, for all your time. वाहे गुरु